Hare Krishna. Welcome to the Gita study session. Today is Monday, 4th of July, 2022. We start with our prayers. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest region of ignorance, and my spiritual master, Guruji, opened my eyes with the torch of knowledge. I bow down to him and pay all my respects. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We'll be reading from chapter 11, shloka number 4. Hare Krishna. Saroj Mataji, please read. Hare Krishna. Manyase yadi tachakyam Manyase yadi tachakyam drishtamiti prabho maya drishtamiti prabho maya drishtumiti prabhu yogeshwar tato me tvam yogeshwar tato me tvam darshayatmanam avyayam. darshayatmanam avyayam. Manyase yadi tachakyam maya drishtumiti prabho yogeshwar tato me tvam darshayatmanam avyayam. Manyase yadi tachakyam maya drishtumiti prabhu yogeshwar tato me tvam darshayatmanam avyayam. Hare Krishna. Rashmi Mataji, would you like to read? Yes, Mataji. Hare Krishna. Manyase yadi tachakyam maya drashtumiti prabho yogeshwara tato me tvam darshayatmanamavyayam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Manyase yadi tachakyam maya drustumiti prabho yogeshwara tato me tvam darshayatmanam avyayam. Hare Krishna. Saroj Mataji, continue. Prabhu, Prabhu, O Lord, Master, O Lord Master, yadi, yadi, if, if, manyase, manyase, you think, you think, iti, iti, that, that, tat sakyam, tat sakyam, it is possible, it is possible, drashtum, drashtyam, to be seen, to be seen, maya, maya, by me, by me, by Arjuna, by Arjuna. tataha, Tataha, then, then, since I am very eager to see, since I am very eager to see, therefore, therefore, Yogeshwara, Yogeshwara, O Lord of Yoga, O Lord of Yoga, of yogis, of yogis, their Lord is Yogeshwara.
The Lord is Yogeshwar. Tvam, Tvam, you. you. Darshaya, Darshaya, show. show. Me, Me, for my sake. for my sake. Atmanam avyayam, Atmanam Avyayam, your eternal self. your eternal self. Translation. If you think that I'm able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all, mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. Haribol. Hare Krishna, Avinash Prabhuji. Hare Krishna. The word Yogeshwar indicates that though Arjun is unqualified, Ayogya, the Lord with his power of yoga, can make him qualified to see that form. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur Haribol. Hare Krishna, Prabhuji. You will read or I should? Rashmi Mataji, Hare Krishna, your turn. Okay, thank you. If you think that your form as all creator, as all ruler, and as all supporter can be seen by me, then, O Lord of Yoga, yoga is the property of having knowledge and other auspicious attributes. For it will be said later on, behold my bodily yoga. 11.8. O treasure of knowledge, strength, sovereignty, valor, power, and glory, which are inconceivable in any one else. By Sri Ramanujacharya. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Reveal yourself to me completely. Avyayam, completely, is an adverb. The meaning is reveal everything about yourself to me, thus prayed to by Arjuna, who was desirous to know and whose voice was therefore choked with fervor. The Lord said as follows to him, Sri Ramanujacharya. Hare Krishna. The Supreme Lord Krishna is being requested to show his Vishwarup or divine universal form only if he thinks it is appropriate, not because Arjuna is curious to see it. The Supreme Lord is being asked in a mood of humility to reveal his transcendental universal form and thus will consider showing it. Sri Sridhar Swami, Haribol. Hare Krishna, Avinash Prabhu. Hare Krishna. Hari Om. In this verse, the manner in which Lord Krishna, powerful universal form, may be meditated upon along with the details of the form is being requested. The word Prabhu means Supreme Master, one who is most powerful and capable. In the Moksha Dharma, it is also mentioned as such, stating there is no one more powerful than the perennial Supreme Lord. Sri Madhva Haribol. Sir, Hare Krishna. It may be wondered that if the great sages, liberated beings, and the demigods are unable to the Supreme Lord Krishna's Vishwarupa or divine universal form, how will it be possible for Arjuna to see such form? This is why Arjuna states the word Manyase Yada, which means if you consider, by Sri Keshav Kashmir. Krishna. Hare Krishna. Shalu Mataji, please read. Hare Krishna. Shalu Mataji.
Hare Krishna Prabhuji. Lord Krishna is addressed by him as the Yogeshwara, or the Lord of Yogis, perfected in the science of the individual consciousness, attaining communion with the ultimate consciousness. By the Supreme Lord's grace, one can achieve the path leading to spiritual perfection, which is one's highest good. Srila Keshava Kashmiri. Hare Krishna. Shalu Mataji, you are there? I think her audio is not connected. Okay, you read Mataji. Shall I continue? Hare Krishna. It is said that one can neither see, hear, understand, nor perceive the Supreme Lord, Krishna, by the material senses. But if one is engaged in loving transcendental service to the Lord from the beginning, then one can see the Lord by revelation. Every living entity is only a spiritual spark. Therefore, it is not possible to see or to understand the Supreme Lord. Shri Prabhupada, Hari Bol. Hare Krishna. Vilash Prabhu. Hare Krishna. Arjun, as a devotee, does not depend on his speculative strength. Rather, he admits his limitations as a living entity and acknowledges Krishna's inestimable position. Arjun could not understand that for a living entity, it is not possible to understand the unlimited infinite. Srila Prabhupada Haribol. Hare Krishna. The word Yogeshwara is also very significant here because the Lord has inconceivable power. If he likes, he can reveal himself by his grace, although he is unlimited. Therefore, Arjun pleads for the inconceivable grace of Krishna. By Srila Prabhupada. Hare Krishna. Shalu Mataji. Hare Krishna Prabhuji. He does not give Krishna orders. Krishna is not obliged to reveal himself unless one surrenders fully in Krishna consciousness and engages in devotional services. Thus, it is not possible for a person who depend on the strength of their mental speculations to see Krishna. Srila Prabhupada, Hare Krishna. अब जाकर अर्जुन कृष्ण से अनुग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, आपके बारे में बहुत कुछ सुना और मैंने जैसे बताया कि मुझे इच्छा है आपका वह स्वरूप देखने की। तो यदि आपकी इच्छा है मन्य से, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस योग्य हूं, हालांकि मैं योग्य नहीं हूं, तो कृपया मुझे वह जो विश्व रूप का दर्शन कराइए। तो हम देख रहे हैं कि सारे आचार्य एक बात से सहमत है कि कृष्ण को कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। कृष्ण कोई भी काम, विश्व रूप तो एक चलो एक छोटा सा ही है, थोड़ी देर दिखाएंगे, फिर अर्जुन खुद ही बोलेगा कि नहीं बस हो गया। तो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये भगवान की व्याख्या है। लोग पूछते हैं ना कि क्या कृष्ण ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उत्तर सरल है, यदि वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और यदि वे ना चाहें तो आप उनसे कुछ भी नहीं करवा सकते। स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और वो जानते हैं कि जब कोई चीज मांगी जाती है तो किस उद्देश्य से मांगी जाती है। वो बैठे हैं हमारे में, उनको पता है क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से उसको देते हैं या नहीं देते हैं। तो हम लोग फोर्स नहीं कर सकते,
ऑफकोर्स एक भक्त फोर्स करता है, पर वो कैसे करता है? वो अपनी भक्ति की शक्ति द्वारा, अपने प्रेम भक्ति की शक्ति द्वारा। कृष्ण कहते हैं मैं दिख जाता हूँ, मैं उसका दास बन जाता हूँ। परंतु इवन वो भी अगर वो घमंड में आके कहे कृष्ण को, चलो मैंने इतनी सेवा की, अब मुझे ये दे दो या वो कर दो, तो भी कोई चांस नहीं है कि कृष्ण करे ही करेंगे। तो आपको मैंने पहले सुनाई थी एक छोटी सी कथा कि एक नारद जी एक बार घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। तो एक विशेषकर एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था, किसी तरह भिक्षा से अपना निर्वाह करता था। उसको किसी ने एक गाय दे दी, दया आई, चलो ब्राह्मण है, गाय की सेवा करेगा, दूध निकलेगा, उससे कुछ धन प्राप्ति करेगा और उसका जीवन चलता रहेगा। तो पहले तो वो जो था गरीब मनुष्य, उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। पर उसने जब देखा कि वो फोर्स कर रहे हैं, ले लो ले लो, तो ले लिया। और फिर वो सेवा भाव तो है, तो उसने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। इतना वो रम गया गाय की सेवा में कि सुबह शाम उसको चारा देना, नहलाना, बाहर लेके जाना, सब उसी में रहता था। तो एक दिन रात में कोई चोर आए और गाय को लेकर चले गए। उसी प्रकार उसी शहर में, गांव में एक बड़ा ही धनी व्यक्ति था, बहुत धनी। उसके पास 20-25 कारें थी, रथ थे, ट्रक थे, सारे टाइप के व्हीकल। उसकी एक इच्छा हुई कि मैं एक बड़ी शानदार रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदूं। तो उसने भगवान के पास जाके मंदिर में प्रार्थना की और कहा कि प्रभु एक कार दिला दो, ये तो मैं 1.25 लाख रुपए का भोग चढ़ाऊंगा। और तुरंत उसको 1-2 दिन के अंदर ही वो कार मिल भी गई, कहीं से पैसा आ गया, उसने ले ली कार। तो नारद जी ये सब देख रहे थे, जब क्योंकि वो गांव गांव घूमते हैं तो उनको पता है क्या हो रहा है। तो उनका मन थोड़ा विचलित हो गया कि ये क्या है, ये कृष्ण का क्या न्याय है। एक गरीब बेचारा, एक ही गाय थी, वो भी छीन लिया उससे, और ये इसके बाद इतनी सारी कारें ऑलरेडी है, क्या करेगा, उसको एक और कार दे दी। तो फिर वो संयोगवश वैकुंठ लोग गए और वहां से वो लोग वृंदावन गए, और कहीं भी जा सकते हैं। तो कृष्ण ने बुलाया उनको, आइए, कैसे देवर्षि, कैसे हैं आप? तो कहते मैं तो ठीक हूं, पर आप ठीक नहीं है। तो कृष्ण को पता था कुछ ना कुछ लेके आएंगे न्यूज। क्या हुआ? कहते अजीब सा न्याय है आपका, एक व्यक्ति के पास इतने सारे कारें हैं, सब है, उसको एक और बढ़िया से बढ़िया कार दिला दिया आपने, और एक वो गरीब जो है, एक गाय मिली थी उसे, उसका जीवन हो सकता था ठीक उससे, वो भी आपने छीन ली, तो ये क्या न्याय है? तो कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि देखो भाई, मेरा न्याय उचित है। जो अमीर व्यक्ति है, उसने पिछले जन्म में इतने सारे पुण्य के काम किए हैं कि उसको अभी 15-20 कार और मिलने वाली है, उसके भाग्य में है, कोई नहीं रोक सकता है। तो मैंने, और उसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, चलो तुम अपनी कार लो और निकलो यहाँ से। नहीं भी मांगता तो मैं उसको दिला देता। और जो एक गरीब ब्राह्मण है,
इसने अभी अभी कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले सेवा मेरी आरंभ की थी और बड़े सिंसियरली वो सेवा करता रहता था, परंतु बीच में एक गाय आ गई। वो गाय आ गई तो उसका ध्यान उसमें लग गया। उसकी वजह से उसकी जो भक्ति सेवा थी वो कम होने लगी, उसका ध्यान भी नहीं था। वो जब करते करते भी गाय के बारे में सोचता था कि अरे उसने खाया कि नहीं, उसको ले जाना है, उसको नहलाना, सब यही सोचता रहता था। तो कहता ये, मैंने सोचा कि ये एक बाधा है उसकी भक्ति में, तो मैंने वो गाय को निकलवा दिया, वहां से चोरी करवा दी। और अब देखो तुमने जाके देखा क्या कभी? वो ब्राह्मण फिर से सेवा में जुड़ गया है, उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई तिरस्कार नहीं है। तो मेरा न्याय जो है हमेशा उचित रहता है। तो देखिए इससे पता चलता है हमें। अर्जुन को नहीं भी कह सकते थे, अरे क्या तमाशा लगाया है, क्या है विश्व रूप वगैरह, मैंने किसी को दिखाया ही नहीं आज तक। माँ को थोड़ा सा दर्शन दिए थे, वो भी पूरे विश्व रूप के नहीं दिए थे, एक सारे ब्रह्मांड के दिए थे। अभी क्या तुमने मेरे को पूछ लिया? परंतु कृष्ण के 2-3 उद्देश्य थे उसमें। भक्त को संतुष्ट करना, और उन्हें भी ये पता था कि अगर जनता ये देखेगी तो जो आज भक्त नहीं भी हैं वो विश्व रूप देखने के बाद थोड़ा आकर्षित होंगे। भक्त बनेंगे उसकी गारंटी नहीं है, परंतु उनको लगेगा कि अरे बाप रे, इतना भयंकर व्यक्ति है ये तो हो सकता है वो भक्ति में आ जाए। तो इसलिए अर्जुन को उन्होंने निमित्त बनाया। मैंने पहले बताया आपको कि कैसे लोग आज भी कृष्ण को माने न माने बट विश्व रूप के जरूर, तो ऑफकोर्स कहते हैं विष्णु जी के विश्व, जो भी है ठीक है, हमको पता है अंतर नहीं है दोनों में। तो इस प्रकार अभी कृष्ण रेडी हो रहे हैं, मान रहे हैं अर्जुन की बात। और अगला श्लोक फिर वो कृष्ण उनसे संबोधित करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अभी यदि आपको कुछ पूछना है, कहना है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji. There is no doubt. Like Krishna से कोई जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकता है। उनकी इच्छा होगी तो वो किसी को भी दर्शन दे सकते हैं। तो अभी तो ये लगता है बस उनकी चरण पकड़ के बस लगे रहे हैं। कभी ना कभी उनकी हमारे में भी दया होगी। क्योंकि वैसे देखा जाए प्रभु जी, कहते हम और आप जैसे लोग मतलब साधु संगत बहुत जरूरी है अगर हमें उसमें प्रोग्रेस भक्ति में। थोड़ी सी साधु संगत हटती है प्रभु जी तो माया का बहुत जल्दी अटैक होता है। और अभी माया का लोगों के ऊपर कि अगर वो विश्व स्वरूप भी दिखा दें, कृष्णा अगर सामने भी आ जाए तो लोग प्रभु जी उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। इतनी माया का मतलब है असर लोगों के ऊपर कि मतलब मैं तो जब देखती हूँ तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता है इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रभु जी। बस अब छोड़ छोड़ के मन करता है भक्ति में रहो और अगते तो लोगों के बीच में रहिए अगते। सो लेट्स सी कृष्णा का। लेकिन कृष्णा बहुत दयालु है, बहुत दया करते हैं और मतलब देते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आई एम वेरी लाइक हैप्पी प्रभु जी, आपने मतलब बिल्कुल सही रास्ता दिखाया हमको। अभी तो मतलब इसको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितने लोग भी हम लोग क्लास में है कम से कम इतने ये गारंटी मतलब ये है कि प्रूफ की हाँ कृष्ण कृष्ण है। हम लोगों ने स्वीकृति करी है कि हम लोग कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं और कहते लगे हुए हैं उसमें। तो इट्स गुड ओनली प्रभु जी। इसी तरह हम लोग प्रभु जी आपको बहुत परेशान करते हैं और कहते क्लास नहीं अटेंड करते हैं, लेकिन प्लीज आप हमारे क्लास लेते रहिए। फिर से जुड़े हुए जब तक हैं तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। और प्रभु जी और फिर से रिक्वेस्ट करूंगी श्रीमद् भागवतम के लिए बहुत मिस हो गया है। जहां आपने छोड़ा था प्रभु जी वहीं रह गया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, करेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और श्रीमद् भागवतम स्वयं पढ़ते हैं ना प्रभु जी, तो समझ में नहीं आता है प्रभु जी। वो मतलब बहुत अगाध ज्ञान है, तो अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए पढ़ते हैं प्रभु जी, बट समझ में नहीं आता है। तो वो अच्छा रहेगा प्रभु जी, आप स्टार्ट कर देंगे तो ठीक है। एक Yes, श्लोक का भी Prabhuji, प्रभु जी। that वैसे I'm आपके also यहाँ looking forward. पुराने वाले वीडियोस देखे हैं प्रभु जी, मैंने अटेंड भी किए हैं आपके। चैप्टर कैंटो 3 तक आपने, आप यूएस में थे Yeah. तब लिया था। करेक्ट। हाँ, कैंटो 3 तक आपने किया था, श्लोका बाय श्लोक का किया था प्रभु जी। तो वो भी उसके किया था, बाद में रह गया था। मैंने एक अध्याय भी किया था हिंदी में जब करता था। जी प्रभु जी, हम शायद वो लोग मेरा मिस हो गया। 5 तक पहुंच गए थे, हम लोग कैंटो 5 तक पहुंच गए थे प्रभु जी। हाँ जी। उसके आगे बढ़ना है हम चलो लोगों देखते ने। हैं देखते हैं देखते हैं। Yes, Prabhuji, सारी notes जो है ना आधी आधी है भागवतम की. It was like so nice. After every class वो revision होता था, फटाफट सब लोग like ऐसा लगता था अभी हम बोले like that. Yes, Prabhuji, please start it once again. Okay. Thank you very much. What is the Thank you. difference between Bhagavatam and Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is I spoken don't by know Krishna about it. and Bhagavatam is about Krishna. भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और भागवत में कृष्ण की पूरी कथा है, उनके सारे अवतार, सारे भक्तों के बारे में, और मेनली कृष्ण को पूर्ण रूप से आप जान सकते हैं भागवतम सुनने के बाद। वो अंतर है, भागवतम कृष्ण के बारे में है और भागवत गीता कृष्ण ने कहा है। भागवतम में भी महाभारत का भी उल्लेख है। भगवत गीता जो है वो महाभारत के समय कही गई है। ओके। प्रभु जी, और जो अभी आपने कहानी बताई है ना, तो कभी कभी मतलब मैं अभी ऐसे सोचती रहती थी कि मुझे पुत्र क्यों नहीं है, कि पुत्री क्यों नहीं है, कि मैं ऐसे ही क्यों हूँ। तो काफी बार मतलब पहले से भगवत गीता जब से स्टार्ट करी तभी से मुझे वो बहुत ही क्या बोलते कंफर्ट मिला कि नहीं, जो भगवान करे, शायद बहुत जन्म हो गए वो मैं ही कर, वो जो मैं वही कर रही हूँ, अभी कहीं तो आके स्टॉप होना है। सही बात। तो इसीलिए शायद उन्होंने मुझे नहीं दिया। और एक आध लेक्चर में, सॉरी क्लास में आपने बताया था कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, बेटा भी है और अपनी पिता भी है, तो इसीलिए सब या वही ना, कृष्ण अकेले हमारे लिए काफी है। अगर कृष्ण मिल जाए तो कुछ भी नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि वो सारा हरे कुछ कृष्ण है। रश्मि। तो वो कहानी वापस आके आपने मुझे बहुत ही वापस से सुकून मिला। हाँ जी माता जी। आवाज कट रही है। हाँ, हरे कृष्ण। Actually, don't take it in that way, Rashmi Mataji. Even I am also not having, so I feel very lucky now कि कृष्णा का ये प्लान था कि नहीं दिया है, तो now we can focus on कृष्णा, है ना। और कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर नहीं है बच्चे तो क्या हुआ, बट नाउ I can focus on कृष्णा, तो now I feel very lucky and now I can understand कृष्णा's plan, है ना। So Mataji, I am also like not having any children, huh? So don't worry about it. Just focus on Krishna. You are absolutely right, Mataji. I have told her so many times. देखो, all of us are sitting in the same boat. है कि नहीं? कृष्णा की मर्जी है ना प्रभु जी। I am तो very happy कि कृष्णा ने कोई नहीं दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं, चलो ऐश करो कृष्णा के साथ 24 hours. कृष्णा बट enjoying with कृष्णा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। Yes, no प्रभु जी, responsibility is there. I mean to say कि वो बच्चे मैं का समझ गया, responsibility तो नहीं, मैं रश्मि के लिए बोल रहा हूँ कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कुछ।
बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, उनके साथ भी कर सकते हैं प्रभु जी, लेकिन अगर नहीं है तो हमको रोना हाँ, नहीं है तो and नहीं है तो now नहीं है तो we can आसान है। feel lucky. नहीं है तो आसान है, बहुत आसान है प्रभु जी। अगर है तो भी आसान है, अगर सबको आप लगा लो अपने बहुत साथ। ही आसान। जी 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 प्रभु जी। It's मुझे Krishna's वो planning थोड़ी only. सी कहीं पे वो इच्छा हो जाती है कि जब मैं डिवोटी के बच्चे देखती हूँ ना, हम्म, तो इतने प्यारे रहते हैं, सब तिलक लगा के छोटे छोटे तो ऐसे मन में इच्छा होती है कि नहीं, वो देख काश देख के बच्चे हो जाते हैं ना। बच्चे जब देखते हैं आपको, आपका व्यवहार, तो उससे वो बच्चे तो आपको ही फॉलो करते हैं ना, पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। ऑफकोर्स आजकल थोड़ा बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वो बात अलग है, पर फिर भी वो हो जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, Hare Hare Krishna. Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Krishna. हरे कृष्ण।